کہانی جس کا عنوان کچھ نہ کچھ کمی ہوگی آپ کی محبت میں۔ نسرین آپا آج بے حد خوش نظر آ رہی تھیں کیونکہ ان کی جوائننگ پروفیسر کے عہدے پر ہو چکی تھی، اور انہوں نے جب سائیکالوجی کا کلاس لیا تو انہیں اور بھی زیادہ خوشی محسوس ہونے لگی۔ کینیڈا میں ان کی پرورش تو ہوئی تھی لیکن ان کا آبائی وطن ہندوستان میں تھا۔ صرف انہوں نے اپنے گاؤں کا نام سن رکھا تھا، کبھی انہوں نے آبا و اجداد کے وطن کی سرزمین پر قدم نہیں رکھا تھا۔ والد محترم کی زبانی گاؤں کی منظرکشی ہو جایا کرتی تھی۔ گاؤں میں آم، جامن، لیچی کے بڑے بڑے درخت، بیلا، چمیلی، جوہی، گیندے کے رنگ برنگ کے پھولوں کے باغ باغیچے، پہاڑ، ندی، جھرنے اور سرسر بہتی ہوائیں، سورج، چاند، تاروں کے ساتھ ساتھ گاؤں کے تمام گھروں کی تعریفیں بھی اس طرح سننے کو ملی کہ جیسے وہ تمام گھر زمین پر نہیں آسمان پر ہی بستے ہوں، اور اس گھر میں بسنے والے تمام افراد کا ذکر بھی اس طرح ہوا کرتا ہے کہ جیسے وہ بھی انسان نہیں فرشتے ہی ہوں۔ خلوص و محبت کی بات ہی مت پوچھیے، وہ محبت کینیڈا میں کہاں، یہ بات والد محترم کی زبان پر آ ہی جاتی۔ نسرین آپا باتوں میں اس طرح محو ہو جایا کرتیں کہ اس وقت والدہ محترم کی بھی آواز ان کے کانوں میں سے ٹکرا ہی جاتی۔ نسرین، کالج نہیں جانا ہے کیا؟ باپ اور بیٹی کے گپ شپ نے تو وقت کو بھی خاموش کرا دیا، ورنہ ٹک ٹک کرتی گھڑی کی سوئیاں بھی نہیں وقت کا اندازہ دلا ہی ڈالتیں۔ نسرین آپا بے تحاشا اپنے کمرے کی طرف دوڑ پڑتیں۔ ہاں امی جان، مجھے وقت کا اندازہ نہیں ہو پایا، کالج جانا ہے، وقت ہو چکا ہے، لائیے میرا لنچ اور میں چلی اپنی ڈیوٹی۔ نسرین آپا کو آج پہنچنے میں ذرا سی دیر ہو گئی تھی۔ ان کے سامنے ہی کھڑے پروفیسر عدنان مل گئے جو ان سے سینئر تھے۔ کالج میں ہینڈسم پرسنالٹی تھی تو صرف پروفیسر عدنان کی۔ مزاج میں سنجیدگی، پروقار شخصیت کے وہ مالک تھے، اصول پرست اور تھوڑی دینداری بھی تھی، اور یہی بات نسرین آپا کو زیادہ جچنے لگی تھی۔ کبھی کبھی ایک دوسرے سے نظریں تو مل جایا کرتی تھیں لیکن بات کرنے کا اتفاق چند باتوں سے زیادہ نہیں ہوا پاتا تھا۔ لیکن آج ڈاکٹر عدنان نے دیر سے آنے کا سبب پوچھ ہی لیا۔ آپ 10 منٹ لیٹ ہیں، وقت کا خیال رکھا کریں۔ اس سے قبل آپ نے 1 سیکنڈ بھی پہنچنے میں دیر نہیں کی، ایسی کیا رکاوٹیں آئیں منزل تک پہنچنے میں؟ نسرین آپا بھی مختصر جواب دینا مناسب نہیں سمجھ پا رہی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ تفصیل سے بتاؤں گی جناب، آپ ذرا میرے ساتھ تو آئیے۔ دونوں ایک جگہ آفس میں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ نسرین آپا نے اپنی تمام باتوں کو اس طرح پیش کیا کہ جیسے پروفیسر عدنان سے ان کی پرانی شناسائی ہو۔ دوستی کا خیال پروفیسر عدنان نے بھی رکھا۔ انہوں نے بھی اپنے بارے میں بتایا کہ وہ بھی ہندوستان کے ہی رہنے والے ہیں۔ ان کے والدین اس دنیا میں نہیں رہے، دوبارہ ہندوستان جا کر اپنے خاندان والوں سے ملنے کا موقع ہی نہیں ملا، انہوں نے کوشش بھی نہیں کی۔ نسرین آپا کے خاندان والے جس گاؤں میں رہتے ہیں اسی گاؤں کے چند فاصلے پر ایک قصبے میں ان کے خاندان والے بھی رہتے ہیں۔ نسرین آپا کی دوستی ہم وطنی ہونے کے ناطے پرچم بن کر لہرانے لگی۔ کیسریا سفید ہرا رنگ دونوں کے دل کو بھانے لگا اور محبت اپنا رنگ جمانے لگی۔ نسرین آپا نے تو اپنے والد محترم سے ملوانے کا بھی وعدہ کر لیا، اور پروفیسر عدنان بھی ان سے ملاقات کرنے کے لیے بےتاب ہی نظر آ رہے تھے۔ نسرین آپا نے بہت جلد اپنے والد محترم سے ملاقات بھی کرا ہی ڈالی۔ پروفیسر عدنان سے ملنے کے بعد والد محترم نے بھی ان دونوں کے رشتے کو اور زیادہ مضبوط کر دیا۔ پروفیسر عدنان کو ایسا محسوس بھی ہوا کہ ان کے والدین کی جگہ ہونے والے ساس سسر نے لے لی ہے۔ کینیڈا میں اپنے بچوں کا رشتہ ڈھونڈنا کتنا مشکل ہے اس کا اندازہ تو تھا ہی، اور یہ بھی شاید حقیقت ہی ہے کہ عرب میں رشتے بڑی آسانی سے مل جایا کرتے ہیں۔ یہ بات تو میں نے بھی سنی ہے کہ سعودی عرب میں لڑکے والوں کی پہچان لال جھنڈی ہے اور لڑکی والے اپنے گھر میں ہری جھنڈی ڈال دیتے ہیں۔ لڑکے اور لڑکی والے رشتوں کے لیے خود سے ایک دوسرے کے گھر جا کر رشتے طے کرتے ہیں۔ بیوہ عورت کے گھروں میں سفید جھنڈی اور طلاق شدہ مرد کی جھنڈی لال اور سفید کمبینیشن میں ہوتی ہے۔ جہیز کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہوتا۔ بارات کے کھانے کا اچھا انتظام اور نکاح کے لیے مولانا کی صرف ضرورت ہوتی ہے۔ ہندوستان میں شادی کے جو رسم رواج ہیں شاید ہی کسی اور ملک میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ جہیز کے سامان کی لمبی فہرست نکاح سے پہلے ہی لڑکی والوں کو تھما تو دیا جاتا ہے، لیکن اللہ پاک
ने जो अपने बंदों की फहरिस्त थाम रखी है, उसमें बंदों के नेक अमाल के साथ ही गलती की सज़ा भी लिखी डालते हैं। गुनाह अजीम में इंसान के लिए अव्वल गुनाह जहेज़ की फरमाइश भी हो सकता है। नसरीन आपा की शादी में तो ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। प्रोफेसर अदनान ने एक दूसरे के रिश्ते को 3 मरतबा जी हाँ कबूल कह करके कबूल कर लिया। नसरीन आपा के वालिदैन ने अपने दामाद को एक बेटे का दर्जा दिया और वलीमा का अहतमाम भी अपने ही घर पे किया, चूँकि प्रोफेसर अदनान के तो वालिदैन चंद अरसा कबल ही इंतकाल कर चुके थे। नसरीन आपा और प्रोफेसर अदनान एक दूसरे के हम मिजाज थे। वो दोनों एक ही कॉलेज के साइकोलॉजी के प्रोफेसर भी थे। इसी वजह से भी दोनों की ज़िंदगियाँ खुशगवार गुजरने लगी। घर में नन्ना मुन्ना नवासे की शक्ल में आ चुका था। नाना और नानी तो जानिसार इस तरह हुए कि जैसे उस घर में बच्चे की आमद पहली मर्तबा हुई हो। नवासे की आमद से घर में खुशियों का इजाफा कर दिया था। नाम क्या रखा जाए, बारी बारी बच्चे को गोद में लेकर पूछा जा रहा था। शायान, ये नाम कैसा रहेगा? अब्बू नसरीन आपा वालिद को भी पसंद आया। शायान का नमक चाशनी भी बड़े एहतमाम से किया गया। बच्चा 1 साल का हो चुका था। रफ्ता रफ्ता उसकी हरकतें भी अजीब व गरीब होने लगीं, जिसे देखकर नसरीन आपा को फ़िक्र होने लगी। नाना नानी के लाडो प्यार में तो ऐसा घर के लोगों ने बुराई पर गौर ही नहीं किया। सिर्फ नसरीन आपा को बुराई नज़र आ रही थी, चूँकि वो साइकोलॉजी की प्रोफेसर थी। इंसान की हरकत व सकनात पर गौर करना ही उनका पेशा भी था। शायान की बुरी हरकतों की वजह क्या हो सकती है? ऐसा वो क्यों करता है? कनाडा में तो ऐसा एक भी बच्चा देखने को नहीं मिला जिसने पाखाना जैसी गंदगी को हाथ में लगाया हो, लेकिन मेरा बच्चा दिन में कई मरतबा पाखाना हाथ में उठा लेता है। हैरत तो इस बात की थी कि घर के तमाम लोगों की निगरानी में भी ऐसा मेरा बच्चा कैसे कर लेता है। साइकोलॉजी के प्रोफेसर होने के नाते नसरीन आपा के दिमाग में तरह तरह के सवाल पैदा होने लगे और जवाब नहीं मिलने पर परेशान हो जाना भी लाजिम था। नसरीन आपा भी उस मामले को यूं ही नज़रअंदाज करने वाली नहीं थी। बच्चे की हरकत व सकनात पर निगाह रखना और बात की बारीकी पर गौर करना ही उनका मकसद बन चुका था। उन्होंने दिल ही दिल में एक फ़ैसला कर लिया कि इस बात की तहक़ीक़ वो करके ही रहेगी। उन्होंने अपने वालिदैन से हिंदुस्तान अपने ख़ानदान वालों के यहाँ जाकर मिलने की ख्वाहिश ज़ाहिर की, जिसके लिए उन्हें इजाज़त भी मिल गई। शौहर के हवाले कनाडा की तमाम जिम्मेदारियाँ पूरी करके वो हिंदुस्तान के लिए रवाना हो गई। हिंदुस्तान पहुँचने के बाद एयरपोर्ट पर लेने के लिए उनके ख़ानदान वाले गाड़ी लेकर खड़े हुए। गाड़ी पर बैठते ही उन्होंने अपने ख़ानदान वालों से कहा, हमारे वालिदैन जितनी तारीफ़ें आप सबों की करते हैं, इससे कहीं ज़्यादा मोहब्बत मिल रही है। गांव पहुंचकर तो ज़रा देखूं कि मोहब्बत के अलावा वहां और क्या क्या मिलने को है। मोर तो बागों में नाचते हैं और मैं खुशी में यहीं पर नाचने लगूंगी। कोयल अपनी सुरीली आवाज़ तो सुनाए, मैं सच में झूमने लगूंगी। कबूतर अपने पिंजड़े से आज़ाद हो जाए तो मैं भी इसके साथ गाँव का हर सहन छान मारूंगी। रास्ते भर नसरीन आपा अपनी खुशियों का इजहार करने में मशगूल थीं। खेत खलिहान, बाग बगीचे, क्यारी, नदी, झरने देखकर तो उनका दिल बच्चों की तरह खिलखिलाने लगा था। रफ्ता रफ्ता मंजिल भी करीब आ चुकी थी। गांव दिखाई देने लगा था। कच्ची पक्की सड़कें, मिट्टी और ईंट का खुला खुला मकान के अंदर सहन में खिलते लाल गुलाब और बेला चमेली की खुशबू और तरह तरह के पौधे, जिसमें एक पौधा छुई मुई का था। जब उस पर उंगली कोई भी रख देता वो पौधा शर्म से सिमट जाता। मकान के पीछे वाले हिस्से में तो आम, लीची, बैर, जामुन, नीम, पीपल के बड़े बड़े दरख्त भी थे। सभी दरख्त पर रस्सी बंधा हुआ था जिस पर घर के बच्चे झूल भी रहे थे। बिजली नहीं रहने पर भी ठंडी हवा सुबह को छू रही थी, जिस्म को छू रही थी। हैंड पंप का ठंडा पानी निकालने में उन्हें खूब मज़ा आया। इस तरह चंद हफ्ते गुजर गए तो उन्हें कनाडा हिंदुस्तान आने का वो ख़ास मकसद का ख्याल याद आया। वो तन्हा हिंदुस्तान आई थी और उन्हें जल्द ही वापस भी जाना था, चूँकि उन्हें अपने बच्चे की याद भी आ रही थी। नसरीन आपा ने अपनी ससुराल का पता कर लिया था। घर के चंद ही फासले पर गरीबों की एक बस्ती थी जहाँ उसके ससुराल वाले रहा करते थे। वहाँ पहुँचकर नाम बताया, ससुर का नाम बताया तो उन्हें वो घर भी मिल गया। वो बस्ती डोम टोली के नाम से जाना जाता था और वहाँ वही रहा करते थे जिन्हें साफ़ सफाई की सरकारी नौकरी मिली हुई थी और सभी सरकारी मेहतर के नाम से जाने जाते थे।
ससुर तो हयात नहीं थे, लेकिन छोटे देवर को उनकी नौकरी मिल चुकी थी। मासूम बच्चे की बुरी हरकतों का जवाब मिल गया था, जो सवाल की शक्ल में नसरीन आपा अपने जहन में लिए तन्हा इस बस्ती में भटक रही थीं। अपने ख़ानदान वालों को उन्होंने तो ये भी नहीं बताया कि हिंदुस्तान आने का उनका मकसद क्या था। हिंदुस्तान की सरज़मीं पर जिस तरह उन्होंने खुशी से कदम रखा था, लेकिन अब कनाडा जाने के वक्त उनके चेहरे पर सिर्फ मायूसियाँ रह गई थीं। सभी लोग समझ रहे थे कि ख़ानदान वालों से बिछड़ने का गम सिर्फ हिंदुस्तान के बॉर्डर के इस पार ही रह जाएगा। नसरीन आपा एक परिंदे की तरह ज़िंदगी से थक कर सुबह की हारी शाम को वापस कनाडा के लिए आसमानी सफ़र तय करने लगी और फिर चंद ही घंटों में कनाडा के एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी थी। उनके शौहर प्रोफेसर अदनान उन्हें लेने भी आए, लेकिन उनके साथ गाड़ी पर बैठने से उन्होंने इनकार कर दिया और दूसरी भाड़े की टैक्सी ले ली। घर पहुंचने के बाद भी उन्होंने अपने शौहर से 2 दिनों तक बात नहीं की। उन्होंने सिर्फ वालिदैन को शौहर से नाराज़गी की वजह बताई तो वालिदैन भी परेशान हो गए। एक सादात फैमिली की लड़की के नसीब में ये क्या लिख दिया ऊपर वाले ने। मुस्तकबिल में क्या होगा मेरे नवासे और मेरी बच्ची का। इन तमाम बातों से परेशान हो रहे थे। नसरीन आपा के साथ उनके वालिदैन भी नसरीन आपा के मोहब्बत की शादी में शामिल थे, इसलिए अपने शौहर से वो अपनी बात नहीं कह पा रही थी। मोहब्बत में जो अंधे होकर मंजिल पाते हैं, क्या उन्हें आंखों में रोशनी रखने वाले सीधा रास्ता दिखा नहीं सकते थे? मैं अंधी थी मोहब्बत में, लेकिन आंख वाले तो अपने रास्ते के दरमियान जो गहरी खाई थी मुझे गिरने से कबल आगाह कर सकते थे। इन तमाम बातों का निचोड़ ये हुआ कि तलाक की नौबत आ गई। नसरीन आपा साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए बिल्कुल गवारा नहीं कर रही थीं। प्रोफेसर अदनान फिर से तन्हा हो गए। कनाडा में रहकर भी अपनी बीवी और बेटे से दूर रहना ही उनके नसीब में लिखा था। शायान बड़े हो चुके थे। तालीम मुकम्मल होने के बाद नसरीन आपा ने बहू ढूंढना शुरू कर दिया। एक तालीम याफ्ता घराने में रिश्ता भी तय हो चुका था। तमाम बातों की जानकारी शायान को नाना और नानी जान से हो चुकी थी। वो डॉक्टर होने के साथ ही खुश मिजाज और हकीकत पसंद भी था। शायान की मंगेतर भी लेडी डॉक्टर थी। मंगनी होने के कबल ही शायान ने तमाम बातें पोशीदा नहीं रखी। शायान की हकीकत ज़िंदगी का असर उसकी मंगेतर अफशा पे मोहब्बत का एक ऐसा रंग रहा गया जो कभी ना छूटने वाला था। अफशा एक ऐसे माहौल में पढ़ी बढ़ी थी जहाँ ज़ात पात की कोई अहमियत नहीं थी। कलमा की शरीक सभी मुसलमान का बराबरी का दर्जा होता है। इंसान पेशे या ज़ात से आला नहीं होता, अपने किरदार से होता है। सरदार और ग़ुलाम का रिश्ता भी सिर्फ इंसान से ही जुड़ा है। अफशा और न जाने क्या क्या जुमले लोगों को के सामने रखा होगा, लेकिन नसरीन आपा तो इन सब बातों से बेखबर शर्मिंदगी के समुंदर में डूब चुकी थीं। निगाहों में इतनी ताब भी ना थी कि वो अपनी बहू और बेटे से नज़र मिला सकतीं। प्यामे वस्ल था पीपल के पत्ते पत्ते पर, मैं ख़त को पढ़ न सकी शाम की तमन्ना में।